Hello friends, I am Nikhil Gurujar and I am the President of Consulting Connoisseurs. I am also the Governing Council member at the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. In addition to being a Governing Council member, I am also the Chairman of their Business Networking Committee and the Co-Chairman for their Coastal Shipping Committee and the IT Committee. And I am also a member of the think tank of the Maharashtra Chamber of Commerce for interventions with DTE, that is the Directorate of Technical Education, Government of Maharashtra. Apart from being active with the Maharashtra Chamber, I am also active in Rotary as a district team member for Rotary projects on road safety. Well, with that introduction, I think let's move on to understand why we are here today. We are here today for what we call the iPro program, that is, in other words, the iProfessional program, making people more professional. So these are a series of professionally engaging programs which are meant for students which are in the technical education stream. That means students like you who are looking at improving on their technical education prowess and understanding better their engineering curriculums. In this particular program, we have a series of workshops that have been introduced through an industry partnership. So fundamentally, we are an industry-led initiative of the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, which has been supported by the Directorate of Technical Education or DTE. President Shantanu Bhatkamkar of the Maharashtra Chamber spearheads this particular initiative along with support from Professor Shah at DTE and Dr. Mahajan at DTE. So as part of this particular program, we are looking at three fundamental areas of engagement. The first area that we are looking at is in understanding alignment. So when we are here, we are talking about how students have to align themselves to this particular program. The second area is to understand how you can accelerate your performance. We know that performance is important, but when we talk about performance, we also need to know how the performance has to be improved. And thirdly, we are talking about preparedness. So we want all the students or the student community here to be better prepared for a better tomorrow. So you will see a team from Maharashtra Chamber engaging with your colleges as we will be touring all the institutions in this massive program. We have targeted 8,000 students in the first lab, thanks to the support of our President Shantanu Bhatkamkar, and we will be touching all engineering colleges within the next 3 years. And this program is one such program, and we are going to give you a glimpse of what this program is all about in this supplementary material, which is also a sneak preview of the world outside. Thank you, and I hope you enjoy it. So today we are going to talk about the iPro program. As you can see, we are looking at stressing success. That's our key. How we have to stress on success. So this is the introductory or overview session, and we intend to give you a sneak peek of the world outside. Before we start doing these kind of activities, we need you to have a few words of caution. You need to be careful about what is being said and what is not being said, and you need to be careful about how it is being said. So when we start, we need to have a few words of caution. So we need to be careful. हमको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. तो इसके लिए हमको एक दो चीजें समझ में आनी चाहिए. तो मैं आपको अभी एक कहानी सुनाऊंगा कि आपके जैसा एक तरुण युवक था, यंग मैन, जो डॉक्टर के पास जाता है एंड ही कंप्लेन्स अबाउट सम पेन बिटवीन द आई, मतलब दो आंखों के बीच में यहाँ पे दर्द होता है, ऐसे वो जाके बोलता है डॉक्टर को. तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, ये काफी गंभीर बात हो सकती है, तो हम एक दो टेस्ट करेंगे
टेस्ट करने के बाद देखेंगे क्या होता है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि ये टेस्ट करके लेके आओ। तो ये यंग आदमी बोलता है ठीक है करके आते हैं। तो करके वो लेके आता है वो रिपोर्ट लाने के बाद वो डॉक्टर के पास जब जाता है तब डॉक्टर इज स्टडिंग द रिपोर्ट. डॉक्टर इज प्रीटी वरीड. He says, oh, the problem is your testicles. That's what is causing pain between your eyes. तो आपको निकालने पड़ेंगे. So the man is shocked. Says, oh, is there no other way, doctor? निकालने पड़ेंगे. You know it's quite a grave and serious thing. The doctor says, unfortunately, no. आपको निकालने ही पड़ेंगे. तो ठीक है, विद अ हेवी हार्ट द यंग मैन, जो आपकी तरह तरुण है, युवक है, बोलता है ठीक है ये सर्जरी कर देते हैं. तो सर्जरी करने के बाद ही इज ओके एंड ही गोज एंड वांट्स टू मीट हिज फ्रेंड इन अ नेबरिंग टाउन. तो व्हेन ही गोज टू मीट हिज फ्रेंड बोलता है ठीक है तुम आ गए ना यार, बहुत दिनों के बाद आ गए, सो लेट मी शो यू अराउंड. तो दे गो टू द मॉल, the shopping complex, the theaters, and he's showing him around. And then the friend says, अभी मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ पे खास आदमी के साथ, तो मुलाकात करवा लेता हूँ. वो आदमी जो है, he is a tailor in the market, and he is the best tailor in town, and he knows how much is the size of the garment which a person wears. मतलब हम जो पहन रहे हैं उसका वो बराबर साइज और माप बता सकता है. तो ये आदमी बोलता है ठीक है देखते हैं क्या है. तो टेलर उसकी तरफ देखता है और बोलता है आपका जो शर्ट है ना वो 42 साइज का है. मतलब करेक्ट. अरे वाह. आपने जो पैंट पहन के रखी है वो 38 साइज की है. बोलता है करेक्ट. अरे ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, इसको सब आता है. फिर वो बोलता है कि आपका जो अंडरवेयर का साइज है वो 85 है. वो बोलता है नहीं, मैं जो पहनता हूं वो साइज 80 का है, नॉट ऑफ 85. वाकई में उतने अच्छे नहीं हो जितने मेरे दोस्त आपकी तारीफ कर रहे थे. सो देन the tailor says, okay, I accept this defeat. तो the friend says, देखो आप इतने बड़े बड़े बातें कर रहे थे लेकिन आप गलती कर बैठे. क्या फायदा इसका. तो टेलर बोलता है बात समझिए सर, आप भले ही आप 80 नंबर का आप पहनते होंगे लेकिन 80 नंबर आप पहनते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा आपके टेस्टिकल्स पे, और इस प्रेशर की वजह से आपकी आंखों के बीच में दर्द हो सकता है. सो दैट इज माय फ्रेंड अ लेसन. एंड व्हाट इज द लेसन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड? यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द राइट रूट कॉजेस. दैट्स व्हाट वी हैव टू bear in mind. So don't jump into conclusions when you hear something. You ensure that you have the right root cause. So, दूसरी कहानी में आपको और एक सुनाता हूं जो आपके समझ में आना चाहिए कि इसका क्या महत्व है आपके करिकुलम पे. जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, एक घोड़ा है और एक गधा है. दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, हॉर्स एंड द डोंकी जिसको हम बोलते हैं. तो ये दोनों फ्रेंड्स अच्छे थे एंड वंस द हॉर्स फेल इल एंड टेरिबली इल, इन फैक्ट सो इल दैट दे हैड टू कॉल द वेट्स. जो वेटरनरी डॉक्टर होता है जो दवाइयां देता है जानवरों को, उस डॉक्टर को बुलाना पड़ा. तो रैंच के जो ओनर थे जहां पे वो थे फार्म के, वो वेट्स को बुला के उनको दिखाया उन्होंने. तो वेट लोग जो है वो आए, काफी ट्राई किए, दे ट्राइड वेरी हार्ड एंड दे वर अनेबल टू गेट द हॉर्स अप एंड रनिंग.
the horse was not able to get up. Now, they finally went to the ranch owner and they said, we have done whatever we can and let's wait for some time. And if the horse doesn't get up, then we might have to give him injections. क्योंकि ऐसा है कि जब घोड़े जब बीमार पड़ते हैं and you cannot recover them or make them recover, then you give them lethal injection, जिससे कि वो मर जाते हैं जानवर. तो इन्होंने बोला कि घोड़ों को हमको वो इंजेक्शन देने पड़ेंगे. तो ऐसा बोला, तब डोंकी ने ये सुना, गधे ने सुना, बोला अरे यार इससे तो मेरे दोस्त मर जाएंगे. दे आर प्लानिंग टू किल माई फ्रेंड. सो ही रन्स टू द हॉर्स एंड ही सेज, गेट अप माई फ्रेंड, गेट अप, स्टार्ट गोइंग, अदरवाइज they will kill you. Now the horse was very tired, was not able to get up. Tried but then he said, I can't move, nahi ho sakta yaar, chhod do. The next day the vets came again and they checked the horse and they saw, oh boy, this guy is not improving. So we'll wait for 2 more days and then we will give him the injection. Donkey heard that again. अरे मेरे दोस्त का प्रॉब्लम हो रहा है. So we have to do something. So he goes back and he says, please try, succeed. The horse tried again, but then he was not able to succeed. तो गधे को अभी he was very worried कि अरे मेरा दोस्त वो उठ नहीं रहा है, मार डालेंगे उसको, क्या करे. And then the next day again the vets came, again they checked the horse and again they said, oh, he is not getting up. Well, we will give the injections tomorrow because now we cannot wait any longer. And so they said, okay, that's going to be the end of it. Then the next morning the donkey went to the horse and said, get up man, अभी तो उठो यार वरना मार डालेंगे वो, अभी तो उठो, अभी करो. So he said, fire yourself up man, चलो उठो जाओ भागो. तो धीरे धीरे घोड़ा उठा, got up slowly, then started moving a little by little and then he was doing good. And so the donkey said, yeah, now you are doing great, come on, थोड़ा भागने की कोशिश करो. So very soon the horse started moving और फिर थोड़ा वो भागने लगा. जब वो भागा तब सब लोग खुश हुए, अरे वाह घोड़ा उठा है, घोड़ा भी ठीक है, अभी भाग सकता है. So seeing him run, the ranch owner said, wow, this is fantastic, it's time to party now. So let's cut the donkey tonight. Whoa, what happened? So the second word of caution that you need to have is that you need to understand the politics of appraisals correctly. Now this is what is important for you to know. So rule number 1, understand what you need to know. You need to know real root causes. Otherwise you will end up like the man who was ill in the first case. Second thing, you need to understand the politics of appraisals. Otherwise, the person who does the work may not actually get appraised the right way. So having understood these 2 things, let's move on. So let us understand what the reality today has. So हम लोग बात करते हैं कि असल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. But I want to tell you something about the changing competition today. Competition is totally different now. Look at this video. So, the reality today is actually talking about understanding your markets. आपको ये जानना है कि आपके साथ कौन कौन है,
आपके खिलाफ कौन कौन है, आपका कंपटीशन क्या है. सो व्हाट वी सी इज दैट कंपटीशन टुडे कम्स इन ऑल फॉर्म्स, शेप्स एंड साइजेस. हमको मालूम नहीं है कि कौन अपना कंपटीशन है. बगल में बैठा वाला अपना कंपटीशन है, या वो गांव में बैठा वाला आदमी कंपटीशन है, या वहां पे कोई डॉक्टर है जो भी अपना कंपटीशन हो सकता है. आज के जमाने में कंपटीशन हर फॉर्म में आता है. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नेचुरल रिलेशनशिप्स आर बीइंग क्वेश्चन्ड. जो हम बोलते हैं कि ये इंजीनियर का काम है, यहां पे हमारे कॉलेज के लोग इस कंपनी में जाते हैं, ये नेचुरल रिलेशंस है. नेचुरल रिलेशन जो हम लोग वी टेक फॉर ग्रांटेड, दे आर बीइंग क्वेश्चन्ड. आज अपने बगल में एक नया कॉलेज आया है जो अच्छा कॉलेज है, तो उस कॉलेज से बच्चे जा सकते हैं. वही कंपनी में जाएंगे वो जहां पे आप लोग जा रहे हो, मतलब आपका वो कंपटीशन भी हुआ. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट योर कंपटीशन इज. नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस, यू नीड टू ऑल्सो नो दैट इसके लिए क्या उपाय है. उपाय यही है कि यू हैव टू बी इंक्रीजिंगली अलर्ट. So when you look at this alertness is what is important, and you need to be agile. मतलब आपको बदलने के लिए टाइम नहीं लगना चाहिए. You have to be very fast. You need to understand what the market is about. You need to see what is required, and you need to cope with the changing market conditions. So here, one important thing that you need to know is to have sharp tools. So competition, if you have to beat competition, you need to have the right tools. For example, there were two woodcutters who were in a forest, and they were asked to cut a tree. Now both of them took their axes. The first fellow took the axe, went to the tree and started cutting it. Tack, tack, tack. The second guy looked at the axe and said, the axe is good, but it has a problem. It is not sharp enough. So he started sharpening it. Once he sharpened it, for about 3 hours he was sharpening it. And the other guy, took the axe and started cutting. Tack, tack, tack. After 3 hours, this guy's axe was sharp enough. Once his axe was sharp enough, he took the axe and he went to the tree and just it, and the tree fell down in just one stroke. That's what is important. While the other guy was still cutting the tree. So you need to have sharp tools. You need to have razor cut applications of concepts, and that's what is important. So you always need to ensure that you are better honed up. आपको कंपटीशन से ज्यादा अच्छा करना है, और आपको ये देखना है कि आप कंपटीशन के हमेशा आगे हैं. और कंपटीशन मतलब आपके सारे बाकी के इंजीनियर बंधु, आपके गांव के ही नहीं, आपके कॉलेज के नहीं, ये पूरे दुनिया में है. तो यू हैव टू होन योरसेल्फ अप अगेंस्ट दैट कंपटीशन. ओनली देन यू विल सर्वाइव. सो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग. Understand that you need to train yourself. You need to see to it that you get the best training, and you have to develop yourself. And any company that takes people who develop themselves is automatically developed. So that is a golden rule in management. So we need to understand that knowledge today alone is not a differentiator. आपको नहीं आता है, ठीक है भाई, गूगल में जाके देख लो. तो गूगल पे जाके टाइप करता है, देखता है, इसका जवाब आ गया. सो नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, इट इज द एप्लीकेशन. उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, दैट इज गोइंग टू बी द एक्चुअल डिफरेंशिएटर टुडे. सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, वी नीड टू नाउ
move ahead and take a pause to understand how we are learning. So if we look at that, there are multiple ways of learning. So let us understand what the art of learning is. So the art of learning is pretty interesting to know. One important thing which we see is that many graduates, they fail in interviews because they are not aware of how they need to manage their own skills, their core skills, their educational and professional approach. तो उनको ये नहीं आता है, उनको आता है कुछ, एग्जाम लिख देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है, तब इंटरव्यू में उनको तकलीफ होती है ये बोलने के लिए कि उनको क्या आता है और क्या नहीं आता है. So that is where they start failing. And knowledge engineering practice is actually an application of the principles obtained from scientific method. तो आपको जब engineering पढ़ाया जाता है, it is basically the application of what we call the scientific method, because we are pursuing a science and the application of the science in engineering. So it is the application of the scientific method. Now the methodology used to educate must therefore reflect the overall engineering approach. So whatever method you use, you need to focus on how you are going to leverage the engineering approach. तो हम जो पढ़ते हैं वो साइंटिफिक है या नहीं है, और साइंटिफिक अगर है तो उसका कैसे इस्तेमाल हमको साइंटिस्ट जैसा करना है या इंजीनियर जैसा करना है, ये हमको देखना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द की डिफरेंशिएटर. सो let us try to understand with a couple of examples as to how we are doing this. So how we learn is essentially using three basic approaches. The first approach is called the systematic approach. Systematic approach क्या होता है? जैसे आप एक किताब खोलते हो तो उसमें पहला सवाल क्या रहता है? अभी एक टॉपिक ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी. तो पहला सवाल रहेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद रहेगा कि उसका नीड क्या था, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, और ऐसे करके उसको एलैबोरेट किया जाता है. सो बेसिकली दिस इज अ टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ एन अप्रोच. इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच. इट टेल्स यू द नीड, it tells you the principles, the definitions, the characteristics, and the application. So this is the first way in which we go ahead. This is a very powerful approach to learning. मतलब आपको कुछ भी सीखना है तो सीखने के लिए आपको पहला सवाल ये करना है कि इसकी क्या जरूरत थी. ठीक है, जरूरत ये थी. जरूरत जानने के बाद उसका डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसे आपको करना है. तो इसमें क्या होता है, शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा ये करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है. तो इनिशियली इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it becomes easy, because over a period of time it will help you understand how you have to crack any question or any situation. And this is especially useful अगर आपको नौकरी चाहिए यूएस में, यहाँ पे बैठे बैठे, तो आपको सिस्टमैटिक अप्रोच ही यूज करना है, because it's only the systematic approach that will help you crack the interview. The second approach that we talk about is called the target problem approach. आप में से कई लोग गए होंगे ट्यूशन या अभी भी जाते होंगे एकेडमी, प्राइवेट एकेडमीज. तो ये जो है टारगेट प्रॉब्लम अप्रोच, ये कोचिंग एकेडमी में यूज किया जाता है. तो इसमें क्या है कि एक 5, 10, 20 सवाल किए जाएंगे, उनका एक सेट रहता है. अगर आप उन सवालों का जवाब दे सकते हो तो ये गृहित धरा जाता है कि आपको वो आता है. सो द मोमेंट यू से आई कैन आंसर द टारगेट क्वेश्चंस,
the game is won. So any person who can answer the target questions knows that he knows the subject. Now the target problem approach is very popular in the examination system. परीक्षा देना है, हाँ, कितने मार्क के सवाल रहेंगे? 5 मार्क के 10 सवाल, 6 मार्क के 5 सवाल, तो ऐसे अलग अलग सवाल के मार्क्स है. तो इसमें अलग अलग सवाल के मार्क्स है, ठीक है. तो कौन कौन से सवाल आ सकते हैं? तो ये 30 क्वेश्चन बैंक ले लो जी, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो जी. तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ के आता है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन उसको आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन कंसेप्ट अप्लाई करने में उसको दिक्कत होती है. लेकिन पढ़ाई तो उसकी फटाफट हो रही है ना. सो इन द कोचिंग एकेडमी मॉडल और द टारगेट प्रॉब्लम अप्रोच, what happens is the student learns and he is able to learn quickly, but then he may not get the returns, because in the end क्या होता है, you know only to write the answer but you don't know how to apply it in real life. So that becomes a big problem. और इंडस्ट्री, जब हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से आते हैं तो हमको ये नहीं जानना है कि आपने वो 3 मार्क का सवाल कैसे किया, आंसर कैसे दिया. हमको ये जानना है कि आपको हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर एक्चुअली चूजिंग द प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ द conceptual evaluation of the problems is. The third approach is what we call the matrix approach. So matrix approach is used when we have a high degree of integration, which is when the integration is not very high. मतलब टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन टॉपिक का इंटरलिंकेज जो है वो उतना आसान नहीं है. उदाहरण के लिए बायोलॉजी का एक टॉपिक, एक में आप फोटोसिंथेसिस दे रहे हो, दूसरे में आप रेस्पिरेशन दे रहे हो, तो दोनों टॉपिक अलग अलग हैं, उसमें कोई लिंकेज नहीं है. और जब ये लिंकेज नहीं है तो लोग क्या करते हैं, वो एक टॉपिक पढ़ते हैं. सो दे लर्न टॉपिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर टॉपिक्स. इन द सिस्टमैटिक अप्रोच वी वर लिंकिंग इट टू अदर टॉपिक्स. हियर यू विल ट्रीट इट एज एन इंडिपेंडेंट टॉपिक. सो देर आर पीपल हु हैव देयर फेवरेट टॉपिक्स. तो जैसे हाँ, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, और वो टॉपिक, उस पे एक किताब पढ़ ली. कल टीसीएस का इंटरव्यू है, जाके पढ़ लिया नेटवर्किंग के बारे में, बिकॉज दैट इज अ फेवरेट टॉपिक. तो इंटरव्यूअर जब पूछेगा आपको क्या सवाल करूं, वो बोलता है नेटवर्किंग पे कर दीजिए, नेटवर्किंग हमको आती है. सो दे आर गोइंग बाय दिस फेवरेट टॉपिक अप्रोच. नाउ this problem is, or this approach is used in areas like I said, like biology, जहाँ पे वो integration ज्यादा नहीं है और abstract concepts बहुत ज्यादा है. So things are very abstract and very complex to understand and use. And they are also used in social science. But in engineering, a matrix approach is not really preferred. In engineering, one doesn't really go for understanding how this has to work without linking it to the other concepts. So that's about the matrix approach. So if we look at how we learn, it's very interesting. You see here on the y-axis, I have the effort required here per unit. So एक यूनिट आपको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है. And on the y-axis, I have got what we call the knowledge level. Now, when we are talking about knowledge level and effort required, if you look at the systematic approach, you see initially, when the knowledge level is low, मतलब हमको जब कम समझ में आता है, तब उसका एफर्ट ऊपर है, और धीरे 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 वो नीचे आ रहा है. तो शुरुआत में हमको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमको ज्यादा जानना चाहिए. So it becomes a problem there. But if you look at the target problem approach, in the target problem approach, शुरू में क्या होता है, इतने ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लो, हो गया आपका. सो यू आर कंफर्टेबल. बट धीरे धीरे जब आप ज्यादा करते जाओगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. सो विथ टाइम द एफर्ट रिक्वायर्ड गोज अप, एंड दैट्स व्हाट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. And the matrix approach, initially it takes lesser effort, but over time it starts going up.
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको ये जानना है कि आप कौन से मार्केट के लिए पढ़ाई कर रहे हो. इफ यू लुक एट दिस part is where our Indian industry is. So we have our industry and it operates at this point. Now, but if you are looking for a foreign company, परदेशात जाऊन काम करायचं असेल, आपको बाहर देश जाना है, तो you will need to operate at this particular point, which means this is where you need to look at कुठे आपलं एफर्ट ऑप्टिमाइज होऊ शकतं. दॅट इज वेअर आवर एफर्ट कॅन बी ऑप्टिमाइज्ड. सो दिस गिव्स यू अ बेसिक समरी ऑफ हाऊ पीपल लर्न. नाउ लेट अस अंडरस्टँड दिस यूजिंग एन एक्झाम्पल. लेट्स टेक अ पर्टिक्युलर टॉपिक. Let's take any topic. I have chosen gears here because many of you will be knowing what a gear is. गाड़ी चलाते टाइम हम सब बोलते हैं कि गियर को आप चेंज करो. तो वो गियर कैसा होता है सब काफी लोगों ने देखा होगा. आप में से काफी लोगों ने उसको यूज भी किया होगा. साइकिल में भी गियर होता है. तो गियर कैसे यूज होता है आपको मालूम है. तो लेट अस टॉक अबाउट गियर्स. तो पहला सवाल हम ऐसे करेंगे कि गियर, व्हाट इज द नीड फॉर गियर्स. गियर की जरूरत क्या है, क्यों आया गियर ये इस हमारे ये संसार में. What's the need for it? What is a gear? What is the definition of the gear? क्या होता है ये. Then we have to understand what are the characteristics of gears. So what are we talking about? अगर एक गियर आपके सामने रखा गया तो आप उसको देख के आपको बोलना है हाँ ये गियर है. How do you distinguish that? मतलब कोई चीज अगर रखी हो आपको बोलना है कि ये गियर नहीं है, ये भी आपको बोलना है, और ये जो है ये गियर है और ये नहीं है. सो दैट इज वेयर यू हैव टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गियर्स. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गियर्स. ये तो काफी लोगों को मालूम होगा कि प्रॉपर्टीज क्या है. एक जब घूमता है तब दूसरा घूमता है. गियर दोनों सेम साइज के हैं तो बराबर घूमेंगे. एक छोटा है दूसरा बड़ा है तो फिर उसका एक रेशियो होता है. सो एवरीवन नोज दो. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो लाइक दिस वी विल हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. वेयर कैन वन अप्लाई देम. तो गियर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. वेयर डू वी अप्लाई गियर्स. दैट्स अगेन समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग टू नो. देन कम्स द क्वेश्चन दैट आई डोंट वांट टू यूज गियर्स. मुझे वो यूज नहीं करना है गियर. तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. मतलब अगर हमको यूज नहीं करना है तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, क्या यूज कर सकते हैं, त्याच्या जागी दुसरं काय आपण वापरू शकू. दिस इज व्हाट इज एन इम्पॉर्टंट एंड क्रिटिकल थिंग. विच कंस्ट्रेंट नीड्स वन टू नेसेसरली गो फॉर गियर्स. ऐसी कौन सी जो कंडीशन है, कौन से कारण की वजह से हमको गियर यूज करना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ यूज नहीं कर पाएंगे. ऐसी क्या कंडीशन है. व्हाट इज दिस कंडीशन. दैट इज इंपॉर्टेंट. देन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन गियर्स. गियर्स में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, क्यों है. सो इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड यू आर लुकिंग एट नेटवर्किंग, let's take the case of a wireless network. So you will ask, what is the need for wireless network? Wireless network की क्या जरूरत है, क्यों आया वायरलेस नेटवर्क. ना वायरलेस नेटवर्क क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. कब हम बोलते हैं कि वो वायरलेस नेटवर्क है, कब हम बोलते हैं कि वो वायर्ड है, और ये सब. So like that you can ask this question for any topic that you choose. Let us move further. Let's see what happens. Then come the types of gears. So gears के अलग अलग types हैं. So what are the types of gears and what led to exploring those types? Why did those types come? Then the next question is, what are the characteristics of each of these types? तो ये सब type हमको differentiate करने हैं.
कि ये अलग टाइप है, वो अलग टाइप है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप? सबके प्रॉपर्टीज अलग अलग है. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप? सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग. वेयर शुड यू अप्लाई ईच टाइप? तो हर टाइप को हम कहां पे यूज करते हैं, कैसे यूज करना है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव टू ईच टाइप. मतलब ये टाइप अगर हमको यूज नहीं करना है तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये भी हमको जानना जरूरी है. एंड देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. सो विच कंस्ट्रेंट सेज दैट वी नीड टू नेसेसरली गो for a particular type of type. So for a particular type of gear, what is the specific constraint that tells us we have to go for it? And then naturally, what are the basic calculations? So how do you make the calculations for these types? So this is again the next set of questions. We move on and we try to understand this further. So here, what do we see? How do we make gears? What is the choice of material? कौन सा मटेरियल यूज करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा यूज करना है, डायमेंशंस क्या देने हैं, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग उसको सिलेक्ट करें, कैसे हम लोग उसके साथ आगे जाए. सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी असेंबल देम? मतलब उसको कैसे हम लोग बिठाते, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे. सो दैट इज समथिंग अगेन वी नीड टू नो. सो सेटअप, क्वालिटी टेस्टिंग, कमीशनिंग. What kind of tools and assembly sequences are required? So how do we assemble it? उसके लिए क्या क्या लगेगा हमको बिठाने के लिए. Once installed, उसको कैसे यूज करना है. अभी गाड़ी में बिठाया है गियर, तो गियर का इस्तेमाल कैसे करना है. So we need to know that. And what kind of maintenance is required? So maintenance हमको कौन सा, किस तरीके का चाहिए, वो भी हमको देखना है. So that's something which we have to understand. Tell me something. When you look at all these questions, what do you feel? Is this natural? Yes? No? You ask a small child about gears, and they will start asking you, क्या होता है बेटा, क्या होता है अंकल, अंकल आपको आके बोलेंगे वो. आप हमको समझाइए ना, गियर क्या होता है, क्यों होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहां पे यूज करेंगे. सो इट इज नेचुरल. इज द रिगर आइडेंटिफाइबल? यस, इट इज आइडेंटिफाइबल. बट डू यू नो व्हाट हैज चेंज फंडामेंटली? बेसिकली क्या चीज हमने बदली है? हमने बदली है हमारी सोच. हमारी सोच बदलने से हमको अभी दिख रहा है कि हमको क्या जानना जरूरी है. वॉट इज इट दैट वी नीड टू लर्न इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. दैट्स समथिंग विच वी हैव लर्न टुडे. सो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ रिलेटिंग, दैट इज द आर्ट ऑफ क्रैकिंग इंटरव्यूज. अब सबको इंटरव्यू में जाना है, तो सबको इंटरव्यू क्रैक करना है, मतलब नौकरी मिलवानी है या फिर खुद का कुछ करना है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट आर्ट इज. सो लेट अस मूव ऑन टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट योर एजुकेशनल सिचुएशन. अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी आपके जेब में जितने पैसे हैं सब पैसे निकाल के मुझे दे दो, विल यू बी विलिंग? Many of you will tell me, sir, आपको क्यों चाहिए पैसे? Why do you want this? मुझे उसमें से क्या फायदा मिलता है अगर मैं आपको दे दूं तो? Isn't it natural? We all ask, what is it that is there? Why are you asking this for? And how is it going to help us? On similar lines, we will talk about your educational situation. What is the cost of your course? Let us understand. तो आप सब यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, गुड, यस. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर कोर्स? कितने लाख आपने भरे हैं ना कुछ तो ठीक है. हम व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कोर्स, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो.
व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लेट्स से हमने 4 लाख रुपए भरे कोर्स के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर मैं ये कोर्स नहीं करता तो शायद मैं ओला में एक ड्राइवर रहता। ओला का ड्राइवर कितना कमाता है? एज एन एग्जाम्पल, करीब 2000-3000 रुपए वो कमाता है हर दिन का। मतलब मैं यहाँ पे 4 लाख का माइनस हूं और वहां पे वो 2000 पर डे कमा रहा है। तो माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स whatever I lost here plus what he has gained. Then what is the ROI expected? ये सब करने के बाद 4 साल हमारे सीखने के बाद हमको नौकरी कितने की मिलेगी, कितने की मिलनी चाहिए जिससे कि हम बोले कि ये कोर्स में फायदा हुआ, उसको बोलते हैं ROI. तो what is the ROI expected and what is the burn rate? burn rate मतलब आपने कितना गवाया, कितना आपने अपने ऊपर खर्च कर दिया, कितना आपने पैसा जला दिया। तो बर्न रेट आपको देखना है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर बर्न रेट एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स, कि आपको चाहिए जो वो आपके रिटर्न्स कैसे आएंगे। तो ये अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको कम से कम आप जो खर्च कर रहे हो और जो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, आप कम से कम 700 रुपए हर घंटे का आप खर्च कर रहे हो। यू आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 700 रुपीज पर आवर। दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग on an average more than 12 rupees a minute, which means every second you are going to spend some money. So the cardinal question, मतलब आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको बॉस का फेवरेट होना है या ट्रस्टेड टीम प्लेयर होना है, और क्यों होना है, why, give reasons. तो जब हम काफी लोगों से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं वी वांट टू बी अ ट्रस्टेड टीम प्लेयर, वी डोंट वांट टू बी अ बॉस's फेवरेट. व्हाई इज दैट सो? यू हैव टू बी क्लियर दैट योर बॉस नोज व्हाट्स गुड फॉर यू, व्हाट्स गुड फॉर द कंपनी. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अ बॉस's फेवरेट देन टू बी अ ट्रस्टेड टीम प्लेयर. और यही चीज आप अपने एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं. जब आपका प्रोफेसर या आपके प्रोफेसर आके आपको बोले कि बेटा आपको ये पढ़ना है, तो यू बेटर लर्न व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बिकॉज ही नोज व्हाट इज गुड फॉर यू, फॉर योर लाइफ. सो यू नीड टू एंश्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट कॉल. अगेन, another example, when we ask people, would you like to be a super performer or a super achiever? Which position is better? Why? Let me give you an example. We've already seen, जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर कौन थे? सुपर अचीवर थे. उन्होंने अचीव किया, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया. और जो डोंकी था वो कौन था? सुपर परफॉर्मर था. उसने मरने वाले घोड़े को जिंदा करके उसको दौड़ाया. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू ड्रॉ द बैलेंस बिटवीन बीइंग अ सुपर परफॉर्मर एंड अ सुपर अचीवर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर. मतलब हमारे अंदर के जो स्ट्रेंथ्स है, मैं बहुत टाइम पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरा मैथ्स अच्छा है, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स. वीकनेस, यू विल हैव वीकनेसेस कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है, सब छोड़ के एग्जाम के पहले. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीकनेसेस. देन देयर आर अपॉर्चुनिटीज कि हम क्या कर सकते हैं, और थ्रेट्स भी होंगे कि हम अगर ये करेंगे तो किसी और ने हमारा प्रॉब्लम क्रिएट किया तो फिर क्या होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और आपके जो एसेट्स है वो आपको मालूम होना है, आपके लायबिलिटीज है वो आपको मालूम करना है.
So these things are important. Unlike a normal college, जो हम लोग बोलते हैं ना कि साधारण कॉलेज के जो बच्चे हैं, engineering colleges are institutes. So in these institutes, students are treated as professionals. So there you are not kids here. कोई भी यहाँ पे छोटा बच्चा नहीं है जिसको नहीं आता है क्या चल रहा है. He is more of a professional. So we need to understand how you have to work as a professional without supervision, understanding what you need to do, and we need to learn how to manage the stress. क्योंकि कोई हमको बोलने वाला नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. तो आपको वो स्ट्रेस जो है वो आपको मैनेज करना है. आपको देखना है कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज न करके आपके ऑब्जेक्टिव्स आप आगे बढ़ो. तो ये बहुत जरूरी चीज है और ये करने के लिए आपको करना है, यू वांट टू बिकम अ लीडर. यू नीड टू सी बियॉन्ड व्हाट अदर्स कैन सी. जो दूसरे देख सकते हैं उसके आगे 10 कदम आगे, 20 कदम आगे आपको देखना है. एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो आर यू ड्रीमिंग बिग इनफ? अगर आपको देखना है तो आपको एक्चुअली देखना है कि आप आगे कहां तक जा रहे हो. तो आर यू ड्रीमिंग बिग इनफ? क्या आप सोच रहे हो कि आपको जो बनना है वो वाकई में बड़ी चीज है? I asked one engineering student, what do you want to become? What is your dream? And his dream was, I want a job in Microsoft. That cannot be a dream. That is definitely not a dream. So, you need to understand what success multipliers are. We need to create success multipliers. We need to create those things which when they come together will bring you enormous success. So you need to understand how to create success multipliers. You need to know what is a dream. सपना क्या होता है और मेरा सपना क्या है. Getting a job in a company is not a dream. Your dream has to be something which is really big, really strong. Your true dreams are those which will tell you not to sleep. They are those dreams which will say, don't sleep now. You got to get up, you got to work. जो सच्चे आपके ड्रीम्स है, जो सपने हैं, ऐसे होने चाहिए कि आपको सोने ना दे. आपको हर समय बोला जाएगा आपके सपनों के जरिए कि मुझे उठ के काम करना है. So that is what your true dream is. What's important for you to know is, are you going after your dreams? This is something which is important. ठीक है, सपना तो देख लिया, बड़ा सा सपना देख लिया कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर बन गया हूं. सपना देख लिया, इंजीनियर, सबसे बड़ा इंजीनियर, लोग मेरे नाम पे वाह वाह करेंगे. वाह, ये ऐसा एक सपना देखा हमने. सपना देखा, ठीक है भाई, सपना देखा, अभी उसको हकीकत में लाना है. सो यू नीड टू क्रिएट गोल्स, यू नीड टू क्रिएट टारगेट्स. ठीक है, मुझे बड़ा इंजीनियर बनना है, मतलब आज मुझे इतना करना है, कल मुझे ये करना है. ये क्लैरिटी यू नीड टू हैव. यू नीड टू मेक योर ओन नाउ. आज से मैं ये तय कर रहा हूं कि मुझे ये बड़ा आदमी बनना है, मुझे ये करना है. And because tomorrow can be too late. Tomorrow you will look back and you will say, शायद किसी ने मुझे बोला होता, मैं कर देता ये. So we don't want to end up in that situation. So you need to have the right plan. आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है. तो ये important है. Lastly, you need to understand the art of being comfortable while being dynamic. मतलब आपको मैनेजर कैसे बनना है. क्योंकि क्या होता है कि इंजीनियरिंग इज वन स्किल, तो आपके पास हजारों स्किल्स है ऐसे, तो आपको एक एक करके आपको मैनेज करना है. जब सब आप मिलके इसका ये मैनेज आप करोगे, फिर आपको मालूम होगा कि कैसे स्टीयर करना है. सो यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ. सो व्हाट यू नीड टू मैनेज?
काय काय सांभाळायला लागतं आपल्याला, क्या क्या आपको देखना पड़ता है. एक, योर ओन सेल्फ. सो यू नीड टू मैनेज योर सेल्फ. हाँ, मुझे ये काम इस टाइम पे इस तरीके से और इस हिसाब से करना है. आय नीड टू मॅनेज माय सेल्फ. मला स्वतःला शिकवायचं आहे, मला स्वतःची माझी काळजी घ्यायची आहे, मला बघायचं आहे की स्वतः मी काय करायला पाहिजे. यू नीड टू मैनेज योर पीयर ग्रुप्स. सब बोल रहे चलो यार आज पिक्चर नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ये काम करना है. आई माइट नॉट गो फॉर द मूवी टुडे बट आई विल गो टुमारो. सो यू नीड टू मैनेज योर पीयर ग्रुप्स. पीयर प्रेशर इज वेरी बैड. हर कोई जा रहा है क्लास के लिए, वो प्रोफेसर है ना वहां पे, वहां जाओ. तो हमको बोलना है मत जाओ. यू नीड टू अंडरस्टैंड, सब जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है. आपको देखना है कि आपको क्या करना है. यू नीड टू मैनेज योर पीयर ग्रुप्स. यू नीड टू मैनेज योर सुपीरियर्स. आपके जो प्रोफेसर्स है, आपके सीनियर्स है, यू नीड टू मैनेज देम कि उनको क्या करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये भी हमको देखना है. यू नीड टू मैनेज योर सबऑर्डिनेट्स, योर जूनियर्स जो है, किसको क्या काम देना है, कैसा देना है, क्यों देना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये सब मालूम होना चाहिए. यू नीड टू मैनेज योर सोशल ग्रुप्स. मम्मी, डैडी, दीदी, फ्रेंड्स, सबको कैसे ये करे, सोशल ग्रुप अपना कैसे ये करो. सो फ्रेंड्स, टू समराइज what you need to do, what we have seen today, we need to understand we have the right levels of caution. हमको सावधानी बरतनी चाहिए. You recall, we need to ensure the right levels of caution. We need to be alert. We need to understand reality. हमको हर समय सतर्क रहना है. हमको रियलिटी समझ में आनी चाहिए. हमको ये मालूम करवाना है और ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ लर्निंग. हमको सीखना कैसे है, हाउ डू वी लर्न. सीखने के बाद इंटरव्यूज के लिए क्या क्या लगता है ये भी हमको जानना जरूरी है. देन वी नीड टू नो हाउ वी हैव टू एक्सेलरेट आवर करियर. मतलब अपने करियर में हमको आगे कैसे बढ़ना है. हाउ टू यूज द स्प्रिंग बोर्ड. ये हमारा कॉलेज जो है वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है. जैसे डाइवर जो होता है, कूदने के पहले उस पर जंप करके ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ही गेट्स फुल एडवांटेज ऑफ इट. In the same way, your college is a springboard. It's a springboard for you to go up. तो ये आपको जानना है कि हम कैसे अपने करियर को एक्सेलरेट करें. You need to develop perspectives. You need to develop a vision. आपको ये देखना है कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, ये आपको देखना जरूरी है. And you need to manage your vision and your ecosystem. मतलब हमारा जो देख रहे और हमारे आजू बाजू का जो ये है इकोसिस्टम, उसको हमको मैनेज करना है. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये सब करते हुए आपको एंजॉय भी करना है, क्योंकि ये साल हमारे जिंदगी के गोल्डन ईयर्स है. सो वी हैव टू एंजॉय एवरी ईयर ऑफ आवर लाइफ. एंड about 25 years ago, I was in your shoes. And I have been enjoying life throughout. So with that, my friends, I would like to say thank you. And the credits for this particular program is a copyrighted program, proprietary program brought to you by Consulting Connoisseurs in association with Hope Consulting Group और Parth Knowledge Network. ये जो वीडियो है आपको पार्थ नॉलेज नेटवर्क से मिल रही है, उनके वेबसाइट से मिल रही है. और ये प्रोग्राम जो है ये हम लोग फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के तहत इन एसोसिएशन विथ द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. एंड इफ यू वांट टू हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑन ग्लोबली accredited professional programs for students, you can contact the Maharashtra Chamber, or alternatively you can contact me also at the website or at the email address info@consultingconnoisseurs.com. We can give you that information. Thank you, my friends. I'm Nikhil Gurjar here. I hope you enjoyed the session. Thank you. Bye-bye.